Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a small solid ball of density half that of water falls freely under gravity from a height of 19.6 meter and then enters into water. Up to what depth will the ball go? How much time will it take to come again to the water surface? We can neglect air resistance, viscosity effect of water and energy loss due to collision at water surface. The value of G is 9.8 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of buoyancy and buoyant force due to buoyancy. तो यहाँ पे we need to understand. Let's suppose we have a water filled container and in this container an object is been immersed. ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इमर्ज होगा, लेट्स से इसका मास है m, so the force that it will be exerting is mg due to its weight in the downward direction. and we know कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डिप करते हैं तो उसका जो apparent weight है वो कम हो जाता है. It is because के water surface exerts a upthrust या फिर buoyant force in the body in the upward direction, and this buoyant force expression is given by the value or the expression rho vg, where rho is the density of the liquid in which the water has been dipped. So ये अगर मान ले कि water में dipped है उसकी density rho है. V is the volume of the object that has been immersed. G is the acceleration due to gravity. So ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. And apart from this we need to also understand about the concept of free fall. So free fall is the motion under gravity, we can say motion under gravity, जहाँ पे जो body fall करती है with an acceleration g. ठीक है, so since it is a constant acceleration that has been acting, so equation of motion can be valid over here, which is तीन equation of motion है हमारे पास. v equals to u plus at, second is s equals to ut plus half at square, third is v square equals to u square plus 2as. ठीक है ना, यहाँ पे v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is the displacement, right? So ये applicable होते हैं for constant acceleration. and यहाँ पे हम a को किससे replace कर देंगे, g से. and we need to be careful with the notations. जो ऊपर की कन्वेंशन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड मोशन को वी विल कंसिडर इट एज टू बी नेगेटिव बिकॉज दीज आर द वेक्टर टर्म्स. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब हमें एक बॉल गिवन है, वो बॉल फर्स्ट तो फ्रीली एयर में गिरती है एंड लेट्स सपोज दिस इज अ वाटर सरफेस. ठीक है, जब ये गिरेगी तो फाइनली वी कैन से जो वेलोसिटी इट विल अटेन एट दिस पॉइंट बिफोर जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs. अब हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है and displacement is also in the downward direction, so g और s दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे. and we have been given, so we can say कि it has been given free fall under gravity from a height and then enter into water. ठीक है, so in this case we can see कि initial velocity will be 0, so finally we can say it can be written as under root of 2gs. जो velocity it will attain just before entering the water will be under root 2gs. so यहाँ से हम देखें ध्यान से तो s हमें गिवन है 19.6, राइट. 19.6 into 2 into 9.8, so 19.6 into 19.6 ही हो जाएगा ये बेसिकली. या इसका सिंपली हम स्क्वायर कर देंगे बिकॉज 2 into 9.8 इज अगेन 9.6 19.6. सो फाइनली v की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 19.6 मीटर. ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी इट विल पर सेकेंड इट विल गेन जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू वाटर. अब जब ये वाटर में एंटर कर जाएगा, राइट, सो जैसे ही ये वाटर में एंटर करेगा सो वी कैन सी कि इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा. सो वी कैन राइट ये बॉडी है वाटर में एंटर कर गई, सो इसकी वी कैन शो इट ओवर हियर. जैसे ही ये वाटर के अंदर एंटर करेगा सो इसके ऊपर एक इसका जो वेट है नीचे लग रहा होगा mg, अपथ्रस्ट रो vg इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड कुछ एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा, राइट. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल्स टू ma, वी कैन राइट mg माइनस रो vg विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू a. तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. But before that what we will do is mg minus rho is density of liquid, volume is the volume. डेंसिटी हमें बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी में भी डिफरेंस है, वी नीड टू बी केयरफुल.
तो हम क्या करते हैं, बॉल की डेंसिटी को बोला गया है इज हाफ, तो इसकी डेंसिटी अगर हमने रो मान ली है तो इसकी वाटर की डेंसिटी हम मान लेते हैं 2 रो। तो ये हो जाएगा 2 रो, ये जो वाटर है यहाँ पे इसकी डेंसिटी हम मान रहे हैं 2 रो, ठीक है। तो 2 रो वॉल्यूम विल बी लेट्स से वी ओनली, ठीक है। एंड जी तो है ही हमारे पास जी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए। अब डेंसिटी को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मास अपॉन सॉरी ये तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो इट विल बी जस्ट, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज बीन इमर्ज्ड, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉल वी कैन राइट मास इंटू डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, राइट। सो इस तरीके से लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। सो दैट विल बी इनटू जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से एम एम फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट, यहाँ से रो रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन हमें आ रहा है, एक्सेलरेशन वी कैन सी क्लियरली इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ जी, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट हमने एक्सेलरेशन नीचे माना था बट इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज द केस। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो दैट इज व्हाट द नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग ओवर हियर। अब फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इस एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो इट विल बी कवरिंग द सेम डिस्टेंस, इट इज 19.6 मीटर। हम उसको थर्ड इक्वेशन से चेक भी कर सकते हैं। फाइनली जब वो नीचे पहुंचेगा एकदम, तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, तो बाय थर्ड इक्वेशन v 0 हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो एंटर किया था वो 19.6 ही थी, so we can say by from third equation we can write 0 will be equals to u square, that is 19.6 का स्क्वायर, इसी वेलोसिटी से वो इनिशियली एंटर कर रहा था। अब ये आएगा, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ g, राइट, क्योंकि हमें माइनस मिला है वो। सो 2 इंटू 9.8 इंटू s, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम a की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, a है ऊपर की तरफ, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो मिल गई है वैल्यू, लेकिन a कुछ भी हो सकता था, राइट। सो यहाँ पे अभी फिलहाल 9.8 है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ s कम्स आउट टू बी, देयरफॉर s की वैल्यू क्या आएगी 19.6 मीटर, यानी कि ये इतनी डेप्थ तक जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली हमें क्या पूछा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो जितना टाइम वो नीचे आने में लगा उतना ही टाइम ऊपर जाने में लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो टाइम कितना लगेगा, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या देख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज टाइम विल बी पहले हम सिंगल जाने का टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम विल बी, फाइनली वेलोसिटी 0 होगी तो इट विल बी u अपॉन a, a अगेन नेगेटिव है तो इसीलिए u अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम यर u हमें क्या मिला है, u हमारे पास है 19.6 और ये हमें मिला है 9.8, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, ठीक है ना, 2, बट ये तो सिर्फ जाने का टाइम था, तो टोटल टाइम विल बी 2 इंटू 2 दैट इज 4, ऊपर आने का टाइम बेसिकली, नीचे जाएगा 2 सेकंड में, ऊपर भी आएगा उतने ही टाइम में, तो 4 सेकंड will be the answer to the next part of the question. I hope you understood the solution. All the best.